let us start with today's lecture. So, as we all know, we are going through our understanding about the concepts of light and how it interacts in this physical world and how do we humans make use of it. So, we have crossed a big part of understanding light in our fundamental physics journey. We started out with the class 6th um, version of light, and then we slowly moved on to the class 7th and then class 8th chapters, and with progressing difficulties. But when the class 10th topic started, it had a lot more detail and a lot more intricacies in the concepts of light that we are going through. So as we discussed in the previous class, that this is a big one. This is a big one. Class 10 NCERT covers a lot of things and in detail with numericals and some advanced, not advanced, but intermediate concepts of physics. So we divided it into 4 parts. We have done the first part, second part, and today is the third part. So here we learned about whatever we discussed in the previous classes and then took it a step further. Then in the second one, we got into geometry and talked about how the images are formed through spherical mirrors, and whatever that geometry is, we discussed the different properties, with a particular geometrical alignment of light rays incident on a spherical mirror, how the images will be forming in those cases. So by the time we finish the fourth one, we will go through a quick revision as well, because after the fourth one we will be going to answer some questions that appear in the IS prelims. So before that, let us start with today's lecture. So we did encounter some numericals in our previous class, and that were based upon these two important concepts or formulas. The first one was mirror formula. Mirror formula gives us the insight into how the images, basically how an apparatus is set up in terms of light and its reflection, and how will the distance of an object, which is u, depend on the distance of an image and whether they are related to the focus of the focal length of that mirror. So ye formula gave us a relation between all these three quantities. Then we came across a formula which gave us the magnification as well as the nature of the image. So basically magnification will be the nature, and the characteristic of the image would be whether it is inverted or whether it is erect. So we also went through a convention that if an object is kept towards the left side, towards the incident side of the mirror, then it will be considered negative. The sign convention that we went through, यहाँ पे जितनी भी चीजें रखी होंगी या जो हम values लेंगे वो negative होंगी, and the things that are forming over on the other side वो positive हो जाएंगी यहाँ पे रखी हुई चीजें. एंड ये जो मैग्निफिकेशन का यूनिट हमें मिला था, इससे जो हम डिराइव करते हैं इंफॉर्मेशन, वट एवर इट इज, मे बी प्लस या माइनस, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि डेसिमल्स में हो सकती है या कैसे भी कुछ भी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ इट इज पॉजिटिव तो ये बताएगा कि द इमेज इज इरेक्ट, और अगर ये नेगेटिव है तो बताएगा कि इमेज इज इन्वर्टेड, और ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वो हो जाएगी डिमिनिश्ड.
और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज हो जाएगी large। तो इतनी छोटी सी मैथमेटिक्स से हमने इतनी सारी चीजें याद कर ली, समझ ली, समराइज कर ली, कंडेंस कर ली। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हमें लेंसेज के केस में भी मिलेगा। अभी तक हम मिरर्स पढ़ते आ रहे थे, बट आज हम लेंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें हमें देखना होगा कि ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है एंड क्या इन चीजों में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं, और इन साइन कन्वेंशंस का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं इन केसेस ऑफ लेंसेज। क्योंकि हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया था अपनी इनिशियल क्लासेस में कि कुछ डिफरेंसेस तो हैं स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज में, ऑल्दो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स लाइट को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कन्वेंशंस बनाए हैं उसे स्टडी करने के, उसे ऑब्जर्व करने के, वो थोड़े कहीं कहीं डिफरेंट हो जाते हैं। लेट्स सी। लेंसेज पढ़ने से पहले हमें अब ये चीज जाननी होगी कि मिरर्स के केसेस में हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मिरर में लाइट पास नहीं होती उसके थ्रू, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम इमेजेस वगैरह बना रहे थे, रियल इमेजेस कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेजेस बना रहे थे इस प्लेन पे। तो लेंसेज जब आएंगी तो लेंसेज तो रिफ्लेक्ट करती नहीं है इमेजेस लाइट को, वो बेसिकली लाइट को पास होने देती हैं एंड पूरी तरीके से नहीं, सिलेक्टिवली पास करने देती हैं। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं लाइट के पाथ में, तो उसको अब हम जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो एज द डेफिनेशन सेज, इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर। अभी ऑब्लिकली क्या होता है? एक किसी भी सरफेस को आप देख लें, जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही जान रहे थे कि परपेंडिकुलर लाइट जब पड़ती है तब वो ऐसे ही वापस हो जाती है। परपेंडिकुलर क्या? किसी सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई चीज जब पड़ेगी तो परपेंडिकुलर। एंड इसके अलावा अगर वो सीधे पड़ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये अलोंग साइड हो जाएगी, ये एकदम ही लिनियरली कोइंसाइड कर रही है इस प्लेन के साथ, ये भी ऐसे ही पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी इन अ वेरी आइडियल सिनारियो। लेकिन जब ये किसी भी और एंगल पे पड़ती है, इट मेक्स सम एंगल, लेट्स से एंगल ए व्हिच इज लेस देन 90 डिग्रीज, तो ये ऑब्लिक रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। तो अब वो रिफ्लेक्शन का केस था। रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि वो पास थ्रू हो जाएगी उस सरफेस से, या यहाँ पे दो मीडियम्स हैं, M1 हो गया और ये M2 हो गया। दिस वन इज एयर एंड दिस वन इज वाटर या एनी लिक्विड या कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्लिक रे जो है ऐसे आके रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट क्या आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बेंड हो रही है, मुड़ जा रही है रे। इट इज नॉट ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रेट लिनियर पाथ एनीमोर, इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय अ सर्टेन एंगल आई, या कुछ भी कह सकते हैं। और बिकॉज वी ऑलवेज मेक सम assumptions एंड मेक सम postulations कि कैसे हम डिवाइस करेंगे एक फॉर्मूला या एक स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, या ऑब्जर्वेशन ही कह लीजिए, तो उसे परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगी किसी भी प्लेन के, उससे ले लेते हैं ताकि एक सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहे दोनों के लिए, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे के लिए भी और रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी। तो यहां से जो एंगल बना रहा है उसको हम मानेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ चुका है। Going back to the definition, it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as the refraction of light. तो ऑब्लिक ट्रेवल करती हुई रे आई, सीधे जाने की बजाय वो थोड़ी सी डेविएट हो गई अपने स्ट्रेट लाइन के पाथ से, एंड यही एंगल जो है डेविएशन का, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जान ही चुके हम क्या होता है।
तो अब इसी को देखते हुए कुछ लॉज यहाँ पे भी होल्ड ट्रू करने चाहिए, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आता है। अब इसको हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले कि ये कैसी ज्योमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है हमें जब रिफ्रैक्शन की बात आ रही है। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है, ऐसा एक थ्री डिमेंशनली मोटा स्लैब होता है, उसके थ्रू ऐसा एक स्लैब है, उसके थ्रू ये देखा जा रहा है। आप तो एक इंसिडेंट रे यहाँ आई, हल्का डेविएट हुई, ऐसे गई, फिर वापस आ गई डेविएट होके बाहर। तो ये रिफ्रैक्शन जो है सिर्फ इस पॉइंट से ही होगा जहां पे वो एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। अगर लाइट रे जो है निकल के वापस वही मीडियम में आ गई, जैसे मीडियम वन था, मीडियम टू हुआ, और फिर ये वापस से मीडियम वन हो गया, तो फिर क्या होगा, ये रेज बाद एकदम से पैरेलल हो जाएंगी दोनों की दोनों। ये रे और ये रे वापस से पैरेलल हो गई, सिर्फ यहाँ पे ये डेविएशन देखने को मिल रहा था। Refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. Experiments show that refraction of light occurs according to certain laws. तो यहाँ पे एक इनेट प्रिंसिपल सामने आ गया कि ये चेंज हो रही है, अगर ये लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इस वजह से हो रही है क्योंकि लाइट की स्पीड, लाइट के पार्टिकल्स की ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो रही है किसी मीडियम में जाते हुए। सबसे ज्यादा जो है लाइट की स्पीड वो रहेगी वैक्यूम में। द लाइट स्पीड इज द ग्रेटेस्ट व्हेन इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, लेकिन इस पे आते हैं थोड़ी से देर के बाद। लाइट की स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.999786 ऐसे करके है। तो 3 × 10⁸ is the approximate speed of light in vacuum। और जब भी वो किसी मीडियम में आती है, ये ग्लास स्लैब जो है क्रिस्टलाइज ग्लास से बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जा रही है मीडियम में लाइट की, इस वजह से ये डेविएशन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इनेट प्रिंसिपल पता चल गया। अब इससे ऑब्जर्वेशंस क्या मिले वो देखते हैं, विच आर टर्म्ड एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। So the first point says that the incident ray, the refracted ray, and the normal to the surface of the two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। यही चीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमने देखी थी कि इस ऑब्जर्वेशन को सही मानने के लिए, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को एक पॉइंट पे जज करने के लिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो। इंसिडेंट रे जो है ये वाली, एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है ये, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारा कुछ सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो प्लेन है ये तीनों के लिए सेम है। वो हमने ने देखा था वो टिल्टेड इमेज के थ्रू कि वो प्लेन कैसा दिख रहा है। एक एक टू डायमेंशनल प्लेन जरूर होना चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें हो रही हैं एक ही लीनियर प्लेन में। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसे मैं ज्यादा नहीं समझाना चाहूंगा, सिंपल रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप मैथ्स वैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी तरीके से तो आपको समझ आ सकती है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं समझाना चाहूंगा मैं। बस ये कहूंगा कि ये जो एंगल्स हैं रिफ्रैक्शन और इसके इंसिडेंस के, ये अब इक्वल नहीं होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के केस में था। अब ये रेशियो इनका बराबर हो गया, और रेशियो एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के थ्रू बराबर हुआ है। जब जैसे अगर इनको हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन ऑफ थीटा
will be basically a ratio of the length of proportions of the lines. जैसे ये L1 है हमारी, ये L2 है, तो इस एंगल से अगर हम ले रहे हैं तो लेंथ अपॉन ब्रेथ वाला कॉन्सेप्ट लगा के ये बनता है. बट वी जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि ये और ये एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड होते हैं. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of given color and for the given pair of media. The law is also known as Snell's law of refraction. This is true for angle 0 is greater than I, 0 is less than I is less than 90 degrees. If the angle of incidence R is the angle of refraction, then ये चीज यहाँ पे होल्ड ट्रू करेगी. ये कांस्टेंट जो लिख के आया है मतलब कि इन दोनों का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट पेस पे बना है. मतलब कि जब भी ये मीडियम्स अगर हमें मिलेंगे, एयर हो गया और ग्लास हो गया, तो इनके बीच ये जो डेविएशन है लाइट का, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे किसी भी साइज का वो मटेरियल बन जाए. उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे सेम रहेगी. अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ये भी देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमें याद रखने की चीज है. क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी के थ्रू आएंगे और क्वेश्चंस को हमारे इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन से जोड़ने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वो रहेगा पॉइंटर कि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो कोई एक चीज ऐसी होगी जो रिफ्रैक्शन को पॉइंट करे. जैसे रेजिस्टेंस हमने जब पढ़ा था अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले टाइम पे, तो कुछ रो एल अपॉन ए ऐसा एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने. तो उसमें एक रेजिस्टिविटी वाली चीज आई थी, ये कांस्टेंट बोला जा रहा था. ये किसी मटेरियल की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने की. तो वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये किसी एक मटेरियल की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की इनेट प्रॉपर्टी हो जाएगी. तो the extent of change in direction then that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index. ये एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट विल टेल अस द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. वो एंगल कितना ज्यादा बन रहा है या कितना कम बन रहा है, कितनी ज्यादा लाइट रे डेविएट कर रही है या कितनी कम कर रही है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें समझ में आएगा. इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम, डिपेंडिंग अपॉन कौन से दो मीडियम्स की बात हो रही है. Refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. Turns out that light propagates with different speeds in different media and the fastest in vacuum. ये चीज हम जान गए. तो रिफ्रैक्टिव, अब जैसे ये हमें पता चल गया ऑब्जर्वेशन से कि ये लाइट की स्पीड है उसमें जो चेंज आता है उसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो अगर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हमें स्पीड ऑफ लाइट में भी चेंज देखने को मिल जाएगा. और यही लिखा है एक वाइस वर्सा टाइप का चीज. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट भी पता कर सकते हैं. जस्ट दैट. यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू हम ये याद कर लेते हैं कि कैसे मतलब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो आर आई लिख लेते हैं. एंड ये जो नीचे इसके नंबर्स लिखे हैं ये है इंडिकेशन कि किन दो मीडियम्स की बात हो रही है, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है. तो एन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू जो हो जाएगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. एंड वही v2 by v1 आ गया. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट, ऐसे लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम
1 will be equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. I will see कि इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, तभी मैं इस पे ज्यादा एम्फोसिस दूंगा आगे, अदरवाइज नहीं. अब क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन पता चल चुका है, रिफ्रैक्शन अब हम कैसे रियल लाइफ में स्टडी करेंगे, या फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे, या फिर हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में कैसे हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं, उस पे आते हैं. एंड दैट हैज डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन द रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज. लेंसेज जो कि हमने बात की, रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट को, लेंसेज रिफ्रैक्ट ही कर रही हैं, बिकॉज दे आर, ऐसे तो हो नहीं रहा, ये चीज पॉसिबल नहीं है यहाँ. तो लेंसेज क्या कर रही हैं, लाइट को रिफ्रैक्ट कर रही हैं, दे आर लेटिंग देम पास थ्रू इट, लेकिन एक सर्टेन लॉ को फॉलो करते हुए, विच इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो भाई यहाँ पे दो लेंसेज दिए हैं, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज ए कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं इसे, क्योंकि हम लोग ने कॉन्वेक्स जो नाम है वो ऐसे दिखने वाले स्फेरिकल सरफेस को दिया था, है ना, मिरर के केस में, और कॉनकेव नाम दिया था ऐसे दिखने वाले सरफेस को, एक आर्क जो कि इनवर्ड कर्व्ड है और एक आर्क जो कि आउटवर्ड कर्व्ड है. लेकिन यहाँ पे ऐसे दो कर्वेचर्स हम देख पा रहे हैं. सो टू बी मोर प्रिसाइज, इनके नाम बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव भी है. अच्छा, और इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ये कैसे पता चल रहा है, जब इन पे हम पैरेलल इंसिडेंट रेज डाल रहे हैं तो उसका बिहेवियर क्या हो रहा है. कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारी लाइंस जो है कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एंड कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के केस में लाइंस जो हैं डेविएट हो जा रही हैं बाहर की तरफ, डाइवर्ज हो जा रही हैं. तो अब यहाँ पे गेम बदल चुका है. कॉनकेव मिरर के केस में सारी इमेजेस जो थी रियल प्लेन पे बन रही थी, मिरर के केस में, कि रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट इधर आ रही थी. अब लेकिन यहाँ पे केस जो है बदल चुका है, अब रियल प्लेन जो है वो बन जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे पास थ्रू हो रही है. तो भाई लाइट रेज जहां जाएंगी, फिजिकल लाइट रेज जहां जाएंगी वही रियल प्लेन होगा. तो दिस विल बी द रियल प्लेन नाउ, एंड ये वाला प्लेन जो है ये वर्चुअल हो जाएगा दोनों के केस में. दिस विल बी दी वर्चुअल वर्चुअल प्लेन. ये हो गया रियल. सो जब हमने ये जान लिया कि किस फिनोमेना के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं लाइट रेज के साथ लेंसेज, तो फिर अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. जैसे मिरर्स के केसेस में हम लोग ने सारे पॉइंट्स पे देखा था कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, कितनी दूर रखा है अगर ऑब्जेक्ट, या लाइट रेज जहां से आ रही है उसमें मिरर पे कैसी इमेजेस फॉर्म हो रही है. वैसे ही सेम अब हम इसके केस में देखेंगे लेंसेज में. और कुछ कुछ आपको दिखेगा कि जैसा कॉनकेव मिरर का बिहेवियर था वैसा बिहेवियर अब कॉन्वेक्स लेंस दिखा रही है, एंड जैसा कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर था वैसी कॉनकेव लेंस दिखाएगी. ये एक जो है डुअलिटी आ गई है दोनों के केसेस में. जब वो एक ही पार्ट कॉनकेव हुआ करता था तब इट बिहेव्ड इन सर्टेन वे, जब दोनों ही कॉनकेव पार्ट जुड़ गए तब वो कॉन्वेक्स लेंस बन गई. तो ये एक डुअलिटी है इस केस में लाइट के ऑब्जर्वेशन में हमारे टूल्स को लेकर के. तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस के वेरियस पोजीशंस देखेंगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, एंड कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी वो देखेंगे, एंड देन वील गो थ्रू अ वीडियो व्हिच विल समराइज हाउ दीज इमेजेस आर मेड. तो यहाँ पे एक सिंपल लेंस बना लेते हैं कॉन्वेक्स, ये. और अब क्योंकि इसके दो ऐसे कर्व्ड सरफेसेस हैं तो यहाँ पे दो फोकसेस भी बनेंगे. एक हो जाएगा F1 हो गया, एक हो गया F2.
तो अब अगर यहाँ से पैरेलल मानते हैं, लाइट को आते हैं देखते हैं हम लोग, पैरेलल रेज भाई इतनी दूर से आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, एंड द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस टू। पिछले डायग्राम में जैसे हमने देखा था वैसे ही हो ही रहा है, सारी लाइन जाके एक पॉइंट पे फोकस पे कन्वर्ज कर जा रही है, एंड इमेज यही बनेगी। एंड जैसे कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी इन्फिनिटी से आती हुई, वही बनती है यहाँ भी, एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब पॉइंट साइज इमेज को हम इन्वर्टेड है कि क्या है ये नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ी भी उससे और पास की जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड ही बनती है, इसलिए इसको हम लोगों ने इन्वर्टेड ही कह दिया। ऑल्दो क्लियर ऑब्जर्वेशंस में ये देखा ही गया कि इट्स इन्वर्टेड। तो कॉनकेव मिरर के सारे बिहेवियर्स कॉन्वेक्स लेंस दिखा रही है। देन बियॉन्ड F1 अगर जाती है, बियॉन्ड टू F1 मतलब, अब ये जो हमने बनाया था इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, F1 एंड F2 को पास कर देते हैं, यहाँ 2F1 एंड 2F2 बना देते हैं, विच इज बेसिकली द पॉइंट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेंसेज के हाफ पार्ट्स का ऐसे बन गया। यहाँ से अगर मतलब इमेज बियॉन्ड 2F1, यहाँ कहीं कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, अगर यहाँ से आती हुई लाइट रेज है ऐसे कैसे भी करते हुए आ रही है, तो ये बिटवीन F2 एंड 2F1 बनाएंगी इमेज, डिमिनिश्ड होगी थोड़ी और हल्की, ऐसे यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज ऐसे बनेगी। रियल ही है एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल क्यों है? क्योंकि लाइट रेज को हम किसी स्क्रीन पे ले पाएंगे क्योंकि वो पास होती हुई लाइट रेज आ रही है इधर। फिर एट 2F1 अगर यहाँ पे ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ये ज्योमेट्री अभी हम देखेंगे अपने वीडियो में, बट ये एग्जैक्ट सेम साइज की इमेज बनेगी यहाँ पे। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी रखी थी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में, तो वहीं बन रही थी, एज सेम इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फिर बिटवीन F1 एंड F2, जब यहाँ पे बिटवीन F1 एंड F2 आ रही है, अरे F 2F1, अगर यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट कहीं, तो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2F2, इससे थोड़ा और आगे बनेगी इमेज, एंड इट विल बी अ लिटिल एनलार्ज्ड। अब ये सारा कुछ वैसे ही अगर हम फॉर्मूला में लगा के देखेंगे m वाले, तो हमें कुछ ऐसी -1 से बड़ी कोई वैल्यू 1.5 या प्रॉब्ली 2 के आसपास कितने मिलेगी। इससे पता चल रहा है इन्वर्टेड है, इससे पता चल रहा है एनलार्ज्ड है। अब अगर एट फोकस F1 बनेगी तो इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पे। वही यहाँ अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी, अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ये इनका पूरी रेंज है, स्पेक्ट्रम है इमेजेस की। फिर एक हमेशा स्पेशल केस कॉनकेव मिरर के केस में आया था हमारे सामने कि अगर फोकस से थोड़ा और ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट P की तरफ अगर हमने बढ़ाया था ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में, यहाँ पे कुछ रखा था, तो पहली वर्चुअल इमेज हमें मिली थी कॉनकेव मिरर के केस में, एंड फिर वो कुछ ऐसी बनी थी। तो वही चीज यहाँ पे भी है, बिटवीन F एंड O, अगर इसमें P नहीं होता, इसमें ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसमें इस पॉइंट को P ना बोल के अब O बोला जाएगा। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट एन एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा केस बन जाएगा, से अगर रखा हुआ है यहाँ पे F है, ये पॉइंट O है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये इमेज कुछ ऐसा होगा इसके साथ कि ये थोड़ा डाइवर्ज कर जाएगी ऐसे, और ये रेज मीट नहीं करेंगे आपस में, ऐसे के डाइवर्जेंट बन जाएंगे। तो इनको प्रोट्रैक्ट करके हम आगे निकालते तो कुछ ऐसी सेम साइड पे बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेबल इमेज होगी। अब m की वैल्यू कुछ प्लस में आ जाएगी,
और ये चीज एनलार्ज रहेगी, मतलब 1.5 से करीब करीब 2 के आसपास. So this was my ugly drawing about these geometric shapes. Now let us go to a good one. अब एक वीडियो के थ्रू देखते हैं इसे. So here we can see that चार्ट इज बीन मेड, जिसमें वही चार्ट जो हम अभी देख रहे थे वही सारी यहाँ पे दी हुई हैं. अब ये हमें सारे इमेजेस के करेक्ट ज्योमेट्रिक वो बताएंगे इंक्लिनेशन की कैसे वो बन रहे हैं. सो विदाउट वेटिंग, चलिए इसको देखते हैं वीडियो को. बिटवीन F1 एंड O अगर बन रही थी, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये हमने देख लिया कि ये बाहर की तरफ निकलती हुई डाइवर्जेंट इमेजेस बन रही थी, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही थी, तो वर्चुअली डायरेक्ट इमेज बन गई ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, एंड वो वर्चुअल इमेज या वर्चुअल प्लेन में आ गई, इसलिए वर्चुअल इमेज कहला गई. फिर जब फोकस पे रखी थी यहाँ पे, इफ द इमेज वाज देयर इन द फोकस, तब ये हमें बाहर की तरफ पैरेलल रेज निकलती हुई दिख रही थी. सो दैट मीन्स कि हाईली एनलार्ज इमेज बनती है और इन्फिनिटी के आसपास कहीं. एंड बिटवीन 2F1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर रखा होता ऑब्जेक्ट, तो 2F2 के कहीं बाहर इमेज बन रही थी, एंड इट वाज एनलार्ज्ड एंड स्टिल अ रियल इमेज. और एट 2F1 अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी है ऑब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली सेम इमेज बट इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्ट अरे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑफ द सेम लेंथ या सेम मैग्निफिकेशन. F will be equal to -1. बिहाइंड 2F1 है तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, और F2 एंड F2 के बीच में, एंड एट इंफिनिटी जब थी तो पॉइंट साइज इमेज बन रही थी एट द पॉइंट F2. So that was that. Convex lenses are now covered and we have done a lot about it. Well then, thank you so much guys. This is the end of the part 3 in the class 10th lecture series. काफी इंटेंसिव था आज का लेक्चर. हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे जो पहले से देखते आ रहे थे, एंड उनके implications देखे lenses के केस में. Then we moved on to the images and the properties and their properties made by the usage of a convex lens. And in the next class, which will be the last class in this light class 10 series, which will cover the concave lens. Concave lens में सिर्फ दो ही ऑप्शंस मिलेंगे हमें, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिले थे. सारी इमेजेस वर्चुअली बनती हैं, एक जैसी बनती आएंगी, सिर्फ एक पॉइंट पे थोड़ा चेंज होगा, एंड अदरवाइज it is very easy to understand. फिर we will be doing a direct numerical on
द पावर ऑफ लेंसेज। अब इसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता, इसमें सीधे हम पावर की बात करते हैं। अब लेंसेज की पावर, ये एक रियल लाइफ से रिलेटेड टर्म है जो हम अब चश्मे पहनते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है, इनमें हम कुछ पावर्स की बात करते हैं, जो कुछ प्लस माइनस बोली जाती है, दूर की, पास की, एंड बहुत सारी चीजें, तो वो भी सीखेंगे कि क्या होती हैं। एंड रियल लाइफ से रिलेटेड मैं वो भी चीज बताऊंगा कि क्या टाइप के आईज के वो होते हैं, क्या कहते हैं, डिजीजेस या कंडीशंस, जैसे बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब नाम सुने होंगे हमने, तो वो क्या होते हैं ये जान लेंगे तो शायद हमारा लाइट का इन टोटलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या टॉपिक जो हमने फंडामेंटल सीरीज में रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से किसी चीजों में से आएंगे, तो क्वेश्चंस भी हम अब इसके बाद वाली क्लास में टैकल करेंगे। With that being said, the journey on my part is complete. If you guys have any question, please shoot them in the chat box. I'll be happy to answer them.